In the series of an industrial motivation talks of Mr. Sharad Borkar, a journalist by profession and ex-guest lecturer in Government of India's Institution of Repute and only one of its kind college in Asia, namely National Fire College, Nagpur, and in Small Scale Service Institute, a premier technical professional institute widely known as SISI. Mr. Borkar had also been called as an expert in Government Polytechnic College to uplift the morale of their students to start their own units in absence of required job crunch in India. This kind of talk of Mr. Borkar had been held in central and state government offices and in industries of repute such as Tata's, Birla's, Exide Batteries, Mahindra and Mahindra, and in the organizations such as Railways, MIDC, NEERI, Tarapur Power Station, Tata Power, and in Mumbai Port Trust, Mumbai, widening its impact in officers' mind from CPWD, HPCL, BPCL, IOC, Central and State Labor Department, banks and departments such as Food and Drugs, Register of Cooperative Societies, Police, and Department of Excise. His first audio CD on Soichiro Honda and Ford, the pioneers of automobile industries, curved the interests of public and executives working in various industries, put a landmark impression by its spoken words and way of expression in the minds of Public Works Department officers. So as to all in almost all districts of Maharashtra, his talk has been held and heard by Public Works Department at large, with its unique style of words and its flow. He impressed everyone, CE, SE, and in small places, the executive engineer of PWD. Right from Shishore, Dongargarh in Konkan to boundary of Sholapur, and from second capital, Nagpur, to the big bosses at Mumbai. A literary talk with thumbs of journalistic thrills to motivate the individual. The talk held at Public Works Department premises at Chandrapur, in which almost all the officers and staff of PWD Circle, Chandrapur were present with few outsiders, have been appreciated the entertaining talk of Mr. Borkar at large, and the Superintendent Engineer Shri A. N. Shambhakar go on narrating his own story of the same character to his staff members after the talk, to tell them that everyone has to be carried with this way or the other way some kind of unique knowledge with them by everyone on his own life in a period of time to make it flourish. It is the way of an individual that has to be performed by him or her without the help of anyone else is called the spirit. Mr. Shambhakar, Superintendent Engineer, also shared his experience after Mr. Borkar's talk. He narrated a story which emotionalized everyone of his staff's heart, because when he started his talk, after the talk of journalist Mr. Borkar, he told that in those days, when he impressed by elderly women with whom he used to travel daily in a bus, he expressed there was not even a bicycle he could have purchased in those days and in the early days of his service with PWD. The outcome of impression after his talk was just like a fatherly words to them, and the PWD staff from Gadchiroli and Chandrapur districts even burst out their feelings in the same tone to express their moral support to their superintendent engineer. The following is the talk of Mr. Borkar's script in Hindi under heading My Girlfriend, held at Chandrapur. My गर्लफ्रेंड, मेरी सहेली, मेरे साथ में पढ़ने वाली,
मेरी कलीग। हमारे हिंदुस्तान के संस्कृति में किसी लड़के का लड़की सहेली होना, विचारों में कुछ बंधन आ जाता है। लोग उस और संकुचित नजरों से देखना शुरू कर देते हैं। पुरुष का किसी स्त्री जाति से मैत्री होना ही गलत है, यह धारणा हमारे समाज में लोगों में कटिबद्ध हुई है। एक जमाने में तो बहन और भाई राह से चलते हुए दिखाई दिए तो सामने वाला उसे बहन बहन और भाई करके संबोधित ना करते हुए पति और पत्नी की व्याख्या सहजता से लगा देते थे। अरे भाई, एक जमाने में तो लड़का और लड़की की अलग अलग स्कूल होती थी और पाश्चात्य देश से जब कल्पना को नए विचारों में किसी संस्थान ने ढालने की कोशिश की तो 97% लड़कों के स्कूल में 1 या 2 लड़की उस क्लास में एडमिशन लेती थी। लड़कों के स्कूलों में लड़की को भेजना भी गैर माना जाता था। समाज बदला, अभी को एजुकेशन की बात निकली। अरे भाई, इंडिया में तो आज के दिनों में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल नाम की मैडम होना 100% पूर्ण हो गया। ये थोड़ा समय का टाइम है। माय गर्लफ्रेंड मेरी भी एक सहेली थी। एक बार मेरी सहेली एक 8 दिन न दिखने के बाद जब मैंने प्रथम बार उसे देखा तो मैंने कहा, मैडम आप क्या बीमार थे? तो मेरे सहेली ने मेरे नजरों में नजर डाल के मुझे बताया कि जो स्त्री अपना घर का काम स्वयं करती है उसे भगवान भी बीमार नहीं गिरा सकता। पूछने पर विरुद्ध कल्पना से जो मेरे विचारों पे आक्षेप किया गया तो मुझे उस कल्पना ने थोड़ी संवेदना दी। अरे भाई, कोई आदमी 8 दिन नहीं दिखा तो हम स्वयं स्फूर्ति से पूछते हैं, आप गांव गए थे? आप दिखाई नहीं पड़े? आप बीमार थे? घर में सब कुशल तो है? मैंने गलती कहां की? यह प्रश्न चिन्ह मुझ पर लग गया। लेकिन मेरी सहेली हमेशा विरुद्ध दिशा से ही बात करती थी। ये मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं जड़ गया। अब मैंने प्रश्न पूछा, मैडम आप क्या बीमार थी? 8 दिन आप दिखाई नहीं पड़ी। किसी भी सभ्य स्त्री लड़की ने बोला होता, नहीं मैं गांव गई थी, नहीं मेजबान आए थे, या फिर किसी एक कारण को मेरे शब्दों का खुलासा कर बात को मिटा देती।
लेकिन मेरी सहेली सहेली नहीं थी, उसे मुझे कुछ बनाना था। मेरी कल्पना में किसी और विचारों को डालकर मुझे परिपूर्ण करना था, और मैं एक सामान्य व्यक्ति के समान उस बात को समझकर इस सहेली से इसके बाद बात न करने का निर्णय मेरे मस्तिष्क में ले लिया। कुछ दिनों के बाद हम लोग एक लाइब्रेरी के हुई चाय के टपरी पर, चाय के ठेले पे एक दो चार प्रोफेसर, मैं, हमारी सहेली जो प्रोफेसर थी, स्वयं सेक्रेटरी, अपने स्वयं लेक्चरर थी, कॉफी पीने के लिए गए और विचारों की वो कल्पना में कहीं तो भी मैंने गलती कर बैठा। मुझे कहना था एक और शब्दों को बराबर न डालते हुए मैंने कह दिया कुछ एक। सब लोगों ने मुझे मेरे विचारों से संबंधित नहीं है करके अपना विचार दिया और सब आर्गुमेंट करने लगे। तब मेरी सहेली ने संस्कृत में एक श्लोक बोल के मैं बराबर हूं यह उनको समझा दिया। शायद वो श्लोक, वो संस्कृत श्लोक किसी के ध्यान में भी आए या नहीं आए, मुझे उसकी खबर नहीं थी, किंतु मैं बराबर हूं। यहां वह श्लोक का सार था और मैं बराबर ही हूं, इसलिए मेरी छवि उन्होंने वो मित्रों के सामने रख दी। मेरे विचारों को कल्पना ने नया रूप दिया। पहले तो मेरी सहेली ने मुझे विरोधाभास उत्तर दे के कहा कि जो स्त्री अपना काम स्वयं करती है, जो स्वयं गृहिणी है, और जो गृहिणी अपना काम स्वयं करती है, उसे भगवान भी बीमार नहीं कर सकता है। ये प्रश्न के बाद ये पहली बार मेरी सहेली से मेरी मुलाकात हुई और प्रतिभा के उस दायरे में मैं फिर नम्र हो गया। वो मेरी सहेली भी कहां थी? अरे भाई, लाइब्रेरी में वो मेरी सहेली कार में आती थी। हमारा कैसा था, हम लोग घर से निकले बस से निकलने के बाद वो लाइब्रेरी में जब पूछने आते थे तो किसी खादी कपड़े वाले व्यक्ति को मेल कर पूछना चाहते थे, भाई लाइब्रेरी कहां है? तो वही बिल्डिंग का गेट, दरवाजा दिखाकर वो खाकी कपड़े वाला चपरासी या कोई बागवान का काम करने वाला व्यक्ति हमें कहता था कि वहां से अंदर जाइए। हमारी लायकी ही उतनी थी कि हम खादी वाले कपड़े को ही सरकारी व्यक्ति है करके समझते थे। लाइब्रेरी के अंदर गए कि किसी एक आध व्यक्ति को पूछते थे, भाई यहां किताबें लेने के लिए क्या करना पड़ता है?
तो सामने वाला आदमी उत्तर देता था और कहता था यहां किताबें बिकी नहीं जाती, ये लाइब्रेरी है। उसे फिर समझाने के बाद हम समझाते थे कि नहीं नहीं, हमें लाइब्रेरी के ही किताबें चाहिए। तो सामने वाला व्यक्ति कहता था आपके पास कोई लाइब्रेरी का कार्ड है, बीटी है? हम कहते थे फिर बाद में, नहीं, हम पहली बार आए हैं और हमें इस लाइब्रेरी से किताबें पढ़ने के लिए लेना है। वो कहीं उंगली बता के किसी क्लर्क के पास भेजता था। वहां हम जाने के बाद वो क्लर्क से बात करते थे और कहते थे कि भाई मैं इस कॉलेज का छात्र हूं, मुझे इस लाइब्रेरी का मेंबर बनना है। तो क्लर्क बोलता था कि अभी 2 बज गया, कल आना। हमारे सहेली का वैसा नहीं था। हमारी सहेली कार से आई कि व्हाइट हैट वाला, ड्रेस वाला आदमी उसका कार का दरवाजा खोलता था। वो सामने जाती थी, जैसे ही सीढ़ियां चढ़ती थी तो कॉलेज में पढ़ाने वाले यंग प्रोफेसर हमारे वो सहेली के पैरों के चरण के पास झुक के प्रणाम करने के लिए तैयार हो जाते थे। बराबर है। आज उसके ससुर जी वो जहां पढ़ाते हैं उस कॉलेज के मैनेजर है, ट्रस्टी है। उन जवान प्रोफेसर के ध्यान में कहीं यह बात आ गई होगी कि कुछ दिनों के बाद ये उनकी बहू ही ट्रस्टी होने वाली है और यदि प्रिंसिपल बनना है तो इनके घर में जाके इनके ही आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। वो आशीर्वाद की जरूरत पूर्ण करने के लिए आज ही वो मेरे सहेली को नमस्कार करने के लिए झुक जाते थे। हमारा विरोधाभास था। वो जब लाइब्रेरी में जाती थी तो कुर्सी पे बैठे बैठे ही लाइब्रेरियन जो चाहिए वो किताबें उनके सामने लाकर रख देते थे। वो किताबों का चयन करके उसे जो भी 2-3 किताबें लगते हैं वो लेकर वापस चले जाती थी। एक आध बार यदि एक आधी बिट कम होती थी तो लाइब्रेरियन किसी और के बेटी पे या अपने खुद के अकाउंट में एक एक्स्ट्रा बुक देने की चेष्टा भी कर देते थे। हमारा विरोधाभास यह था कि हम तो लाइब्रेरी में कैसे आते थे? अरे भाई, घर से बस में निकलते थे। बस में निकलने के बाद 5 पैसा अधिक लगता है करके पहले बस स्टॉप पे उतरते थे। 5 पैसा बचाना जो था, वहां से पैदल जाकर फिर लाइब्रेरी के वो प्रेमाइसेस पे जाके किसी तो भी खादी धारक कपड़े को पूछते थे कि लाइब्रेरी कहां है। अरे भाई, लाइब्रेरी के प्रेमाइसेस में आने के बाद ही हम लाइब्रेरी कहां है करके पूछते थे, क्योंकि विश्वास नाम की चीज में कमी होने की वजह से यह प्रश्न कि मैं बराबर हूं या नहीं। फिर लाइब्रेरी में जाने के बाद उस क्लर्क से बात करते थे। वो बोलता था 2 बज गए, कल आना। कल 2 के पहले जाने के बाद फॉर्म भरने के लिए वो एक फॉर्म देता था। वो फॉर्म भरने के बाद हमने जैसे ही पैसे आगे निकाले और कहा कि कितने पैसे लगता है, तो बोलता था 20 रुपया। वो जमाने 20 रुपया भी काफी था। शायद उस लाइब्रेरी की फीस 250, 300 या 500 रुपए हो सकती है या होगी भी। 20 रुपए निकालने के बाद
जब उस क्लर्क को 20 रुपए देते थे तो कहता था उदयशील कलाना। हमने प्रश्न पूछा क्यों? कल ही तो आपने बोला कि कल 2 के पहले आना, आज तो मैं 2 के पहले आया। वो कहता था अरे भाई आपने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन आप उस कॉलेज के छात्र हो या ना हो, इसके लिए आपके प्रिंसिपल ने आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। अपने प्रिंसिपल का सिक्का और साइन लेके कल आ जाना, तब आपको इस लाइब्रेरी का मेंबर बनने मिलेगा। फिर हम चले वापस, दूसरे दिन कॉलेज में गए, प्रिंसिपल से साइन लिए, फिर बस में बैठे, 5 पैसे बचाए, पहले स्टॉप पे उतरे, वहां से पैदल गए। फिर वही कल का काम, साहब मैं सही और सिक्का लेके आया। वो बोलता है आज शनिचर है, आज तुम्हारा पैसा एक्सेप्ट नहीं होगा, आज 12 साढ़े 12 बजे ही हमारा काउंटर बंद हो जाता है। फिर से एक चक्कर मारो और सोमवार को गए, बराबर पहले फॉर्म लिया, पहले पूछा, फिर फॉर्म लिया, फिर पैसे भरा। आज तो बेटी मिलना चाहिए ना। क्लर्क के पास गए, उसने पैसे लिया, पैसे लेने के बाद हमने बोला कि अभी मुझे किताबें चाहिए। अपने रिटायरमेंट के कुछ 1-2 साल पहले वाला बूढ़ा बुजुर्ग समझदार व्यक्ति मुझ पर चिढ़ बैठा। एक दिन में सब कुछ होता है क्या? अरे आज तो पैसे भरे, पैसे की रसीद, आपका फॉर्म लाइब्रेरियन के पास जाएगा। वो लाइब्रेरियन अपने क्लर्क को आपके नाम से बिटी बनाने बताएगा। वो बिटी बनाने के लिए कम से कम 8 दिन समय लगेगा, क्योंकि आपके पहले भी कईयों विद्यार्थी ने पहले ही पैसे भरे हैं, उनकी बिटी आज तक के मिली नहीं है। बराबर है, बिटी बारोअर्स टिकट, यदि किताब लेना है तो उनके साथ कुछ ना कुछ किताबों के बदले में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो बारोअर टिकट जब तक नहीं होगी, लाइब्रेरी से किताबें कैसी मिलेगी? उसे यदि हमने कहा कि सर कुछ जल्दी नहीं हो पाएगा, वो बोलता था अरे भाई इतने बड़ी यूनिवर्सिटी में, रिसर्च स्कॉलर में, प्रोफेसर में, ये सब कॉलेज और स्कूल अभी शुरू होने के बाद बहुत रश होता है, हम लोग शाम तक के बैठते हैं तो भी काम पूरा नहीं होता है। आप एक काम करना, आज सोमवार है, अगले सोमवार को आके देखना, मतलब अगले सोमवार को भी तुम्हारी बिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी शाश्वती नहीं। 8 दिन आराम करने के बाद जब हम सोमवार को उसके पास गए तो उसने किसी क्लर्क के पास भेजा। वो लड़की एक मैडम थी, उसको हमने बोला कि मैडम मेरा नाम XYZ है, मैं इस कॉलेज का छात्र हूँ, मैंने पिछले सोमवार को पैसे भर दिया है, मुझे आज किताबें लेके जाना है। तो लड़की कहती थी, वो क्लर्क कहती थी सोमवार का दिन भरे हुए पैसे की रसीद टिकट आज तक के हमने नहीं बनाई है, हमने सैटरडे तक के काम पूरा किया है। इस सोमवार से लेके तो ये सैटरडे तक के अगले सोमवार को काम आपका पूरा हो जाएगा। आप सोमवार को आके अपनी बेटी लेके जाना। बड़े तसल्ली से, बड़ी स्माइल देके उसने हमारे बात को जान लिया और हमको अगले सोमवार को आने के लिए बोला। अरे भाई, हम और हमारी सहेली में कितना फर्क था। हम बस के 5 पैसे बचाते थे, वो कार में आती थी। हम चलते चलते वो सीढ़ियों पे चलते थे तो देखते थे कि कोई पहचान का मिले, किसी को ढूंढने के लिए हमारी नजर तलाश करती थी। हमारे सहेली का वैसा नहीं था, उसका वो आते देखते ही यंग प्रोफेसर जो उनके ससुर जी के कॉलेज में पढ़ते थे, वो उनको नमस्कार करने के लिए नीचे झुकते थे।
हमें किताब लेने के लिए, बिटी लेने के लिए 8 और 15 दिन लगता था। उनको उनके क्रेडिट पे किताबें मिल जाती थी। ऐसी व्यक्ति अपनी सहेली हो सकती क्या? ये मेरा प्रश्न मुझे खाते जा रहा था। और मैंने कहा बराबर है, कहां वे और कहां मैं। वो एक इज्जतदार घराने की सुसंस्कृत औरत है। वो एक प्रतिष्ठित एडवोकेट की बीवी है। उसके ससुर जी संस्था चलाते हैं। मेरा अस्तित्व शून्य। वो मेरी सहेली कैसी हो सकती है? लेकिन आज के दिनों ने मेरे कल्पना को नए विचार में डाला और मैंने ये सोचा कि जहां मैं गलत था उस वक्त मेरे सहेली ने अपना विचार डाल के, अपने संस्कृत के श्लोक बोल के मैं बराबर हूं, ये सबको समझाने की जो चेष्टा की है, ये एक साधारण व्यक्ति की कृति नहीं हो सकती ये कोई तो भी भगवान का कुछ तो भी देन हो सकता है। ये कुछ तो भी भगवान देन हो सकती है। किसी तो भी क्या है वो? कृष्ण को नेक जन्म लेने के बाद कौन से जब लेके गए तो पानी की नदी पार करना मुश्किल था, लेकिन कृष्ण चल गया। उसके बदले में लड़की रखी, वो बिजली करके प्रकाश करके ऊपर चली गई, आकाश में चले गई। ऐसा कहीं तो भी अलग कुछ हो जाएगा। और गलती की है मैंने, ये तो मुझे 100% बराबर मालूम था, क्योंकि उस विषय का अभ्यास मेरे पास नहीं था। जहां मैं कुछ कॉलेज के प्रोफेसर, क्लर्क और प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ बात कर रहा था, लेकिन मेरी सहेली ने गलती मेरी छुपा दी और उसके प्रति मेरा एक आदर बढ़ने लगा। एक 8 दिन जाने के बाद वो किताबों में, लाइब्रेरी की किताबों में मैंने सहेली को देखा और वो किताबों के बीच मैंने उनको जाके आदर दिखाकर एक नमस्कार किया और मैडम को गुड आफ्टरनून कहा। मेरे सहेली ने कहा, मिस्टर बोरकर, nowadays you keep a distance from me. Whenever I cross you, you change your way. बात को पूरा समझने के बाद भी मैंने शब्दों को एक ललाट दे दी, झूठा बोला। कहां मैडम, मैं ऐसा कहां करता हूं? तो मेरी सहेली कहने लगी, पिछले 3-4 बार आप मुझे क्रॉस हुए, लेकिन जिस तरह से अभी आपने नमस्कार किया वैसा आपने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। मैंने मन ही मन में कहा कि मैडम आप कहां देवी है, मैं क्या एक साधारण एक अंग्रेजी अखबार में काम करने वाला पत्रकार हूं। पत्रकार भी कहां का, अभी तो लगे हैं हमारे सीनियर हमको शब्द किस तरह से लिखे जाए, न्यूज कैसी बनाई जाए, वो सिखाते हैं। हम तो अप्रेंटिस है, आप कॉलेज के लेक्चरर हो। अरे भाई, आप कॉलेज के लेक्चरर क्या हो, आप कॉलेज की संस्थानिक हो। इतना बड़ा अंतर होने वाली उस सहेली से बात करने की झिझक मन में तो आएगी। मेरे सहेली ने मेरे शब्दों पे कोई विचार नहीं थी प्रकट ने किया और कहने लगी कि मुझे संकेत मिलता है। बराबर, संकेत शब्द संस्कृत शब्द है। मेरे सहेली ने कहा, मुझे संकेत
मिला है कि कहीं तो भी आप मुझसे नाराज हो। और बोलिए आज क्या विषय आप लेके आए? सहेली ने नाराज होने की बात कही तो मेरा शब्द फुट उठा और मैंने कहा मैडम, उस दिन मैंने आपको क्या कहा था? वेरी सिंपल माई वर्ड वॉट्स। मैंने कहा आपको कि मैडम आप 8 दिन दिखे नहीं, आप क्या बीमार थे क्या? उन्होंने बोले हाँ ठीक है आपने कहा था। मैंने बोला मैडम आपने उत्तर क्या दिया? मेरी सहेली कहने लगी What answer I have given? I don't recollect now. But what was it? मैंने कहा मैडम आपने कहा जो गृहिणी अपना काम स्वयं घर में करती है उसे भगवान भी बीमार नहीं गिरा सकता। मैंने कहा ये मेरे प्रश्न का उत्तर कहां था मैडम? बराबर है, हम रोज के काम में रेगुलर काम करने वाले लोग हैं। ऑफिस में 10 बजे जाना, कुर्सी पे बैठने का, फाइल दिखी भी तो उसकी तरफ नजर न देने का, कोई आया भी तो उसका काम न करने का, 5 बजे घर जाने का, ड्यूटी पूरी हो गई। यही हमारे सब लोग चाहते हैं। मेरे सहेली का वैसे नहीं था। मेरी मित्र सहेली परिपूर्ण स्त्री थी। उसने कहा आपका प्रश्न क्या है, फिर से दोहराओ। मैंने कहा मैडम आपने कहा जो स्त्री अपना घर का काम स्वयं करती है उसे भगवान भी बीमार नहीं गिरा सकता। अब मुझे बताइए हमारे मैत्री में भगवान कहां बीच में आया? मेरे गर्लफ्रेंड ने, मेरे सहेली ने मुझे समझाया और कहा बोरकर साहब अभी आप और छोटे हो, जरा आप बात को समझने की चेष्टा करिए। मैं चिढ़ गया। मैंने कहा मैडम इसमें गलती क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। और मेरे सहेली ने वेद बोलना शुरू कर दिया। मैडम ने कहा 2 भाइयों ने घर में झगड़ा किया, मारपीट की। पुलिस क्या घर में उसे पकड़ने आएगा मारपीट क्यों की करके? मैंने कहा नहीं। उदाहरण देने के लिए मैडम ने फिर से दूसरी एक बात कही। घर में पति और पत्नी में झगड़ा हो गया। पत्नी गुस्से में कुछ अनासन बोल बैठी। मायके से आए हुए गहने पति को दोहराने लगी। मेरा मायका कितना पैसे वाला है और मैं कहां शादी कर बैठी। पति को गुस्सा आया और उसने हाथ में जो मिला उसको मार दिया। पत्नी के सर पे चोट आई, खून बहने लगा। बाजू के लोग जमा हो गए। जमा होने के बाद किसी ने हल्दी लगाई, दोनों को समझाया। उस दिन घर में झगड़ा होने के बाद, पति पत्नी का झगड़ा होने से घर में बीबी खाना नहीं बना पाई। उसको चोट लगी थी, उसको गुस्सा आ गया। पड़ोसी ने बच्चे के लिए कहीं से खाना लाके दे दिया कि बच्चा भी भूखा रहेगा करके। उस दिन पति और पत्नी भूखे पेट ही सो गए। 8 दिन के बाद हुई जख्म में हल्दी लगाने से जख्म भर आई। बीबी को लगा
मैं अभी फिर से ठीक हो गई। उसने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया। शाम को पति आए, खाना बना, देखा उन्होंने खाना शुरू कर दिया। आपस में का जो भिन्नता थी वो एकरूप हो गई, दोनों गुस्सा भर गए, दोनों गुस्सा अब भूल गए। संसार फिर से शुरू हुआ। जज क्या घर में आएगा कि तुमने झगड़ा क्यों किया था करके। बोरकर साहब, ये छोटे छोटे बातों में भी किसी ने तो भी अथॉरिटी के पास कंप्लेंट करना चाहिए। कोई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाएंगे तो किसी के भी घर में पुलिस नहीं घुस सकती। अरे भाई, जो गृहिणी स्वयं का काम स्वयं करेगी उसे भगवान बीमार कैसे गिराएगा, इसका मुझे पहले उत्तर दीजिए। ये वेदों से मैं तृप्त हो गया। जो कॉलेज में, क्लास में, चार दीवार के अंदर में जो बात सीखने नहीं मिली, वो मेरी सहेली मुझे समझाने लगी। वो वेद वाक्य, वो वेद शब्द, वो संस्कृत भरी प्रवर्ब, कहावतें मेरे मन में एकजुट हो गए और मैं विचार करने लग गया। उस बात पे मेरी सहेली कहने लगी, मैं पढ़ी लिखी औरत हूं, मैं लेक्चरर हूं, मैं मेरा काम रोज का घर में करती हूं, मैं कोई वो सराफा के दुकान में बैठने वाली अनपढ़ पैसा गिनने वाली औरत थोड़ी हूं। मैंने कहा, हाँ मैडम, आप लेक्चरर हो, आपकी संस्था है, आप अभी कह दिए कि आप अपना स्वयं काम गृहिणी करके करती है, भलाई आपके यहां खाना बनाने वाली है, रोटी बनाने वाला है, घर में नौकर है, चाकर है, लेकिन नहीं, आप स्वयं गृहिणी हैं, इसका आपको अभिमान है। मेरी सहेली कहने लगी, फिर भगवान, जो व्यक्ति अपना काम स्वयं करता है, जो आदमी आलसी नहीं है, जो आदमी आराम से बैठता नहीं है, उसको क्या भगवान आकाश से आके जानबूझ के बीमार गिराएगा? बराबर। सराफा में गले पे बैठने वाली उसकी बहन बीबी सिर्फ पैसा देने और लेने का काम करती है, वो विचारों से अनपढ़ होती है, वो कल्पना से परी होती है, उसको पैसा ही महत्व है। लेकिन मेरे सहेली को समाज की कल्पना, ढंग, कृति, विश्वास, समाज की सोशियोलॉजी, स्ट्रक्चर सब मालूम है और वो मुझे समझाना चाहती है। लेकिन बात विपरीत है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी लड़का और लड़की ने किसी पेड़ के नीचे, किसी जगह पे एकांत में एक से बातें करने लग गए तो लोगों की नजर उनकी तरफ गलत धारणा से जाती है। यह हमारा समाज का घड़न है, प्रतिबिंब है, धारणा है, स्ट्रक्चर है। उस सहेली के वेद वाक्य मेरे दिलों दिमाग में ऐसे बैठ गए कि मैंने उस दिन से अधिक समय मैं मेरे सहेली से बात कैसी कर पाऊंगा और समाज में मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कैसा बन पाऊंगा, इस कल्पना को मन में ठान लिया। लेकिन
विचारों की दूसरी कल्पना समाज में उस वक्त तक जिंदी थी। हमें इतना घंटा क्या बात करते हो कि इस प्रश्न चिन्ह पे लोगों के विचार होने लगे। वो सोचते थे इन दोनों में घंटों से बातें करते हैं। प्रश्न एक में को क्या करते होगे, लेकिन जो चीज मैं मेरे किताबों में नहीं पढ़ पाया वो मेरे सुसंस्कृत सहेली से पढ़ पाया। एक बार मुझे कहीं बैंक में जाना था। एमएसएफसी से अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करने के लिए कहीं लोन लिया था और वो लोन का चेक मुझे आज मिलने वाला था। हमारे नागपुर में अप्रैल मई में काफी धूप होती है। कूलर में बैठा हुआ मैं जब 3:30-4 बजने के बाद भी अपने किताबों से उठा नहीं, तो मेरी सहेली मेरे पास आके बोली, बोरकर साहब आज आपको कहीं बाहर जाना था। बाहर आके मैंने उनसे बात की क्योंकि दूसरे विद्यार्थी डिस्टर्ब हो गए, वो पढ़ाई कर रहे थे। तो मैंने उनको समझाया कि मैडम बाहर में काफी धूप है, मुझे बाहर जाना ठीक नहीं लग रहा है। वैसा भी कल परसों मैं मेरा चेक ले लूंगा। मेरे सहेली ने मुझे प्रबोधन दिया। बराबर है, संस्कृत जानने वाले जो भी व्यक्ति हमारे समाज में हैं वो अधिकतर विद्वान ही हैं, क्योंकि संस्कृत या भाषा साधारण व्यक्ति की कभी भी नहीं रही। वैसे संस्कृत बोली या किसी समाज की बोली न होकर राजे महाराजों की कोटेशंस, विचार की बोली है। आज तक के समाज में पाली प्राकृत भाषाएं लोग बोले। पाली प्राकृत समाज की भाषा थी, संस्कृत राजा महाराजा की भाषा थी। इसलिए एक साधारण श्लोक बोलने वाला व्यक्ति जायते अस्ति वर्धते विनश्यते तपस्यते अपने समाज के बंधनों को किस तरह से समझता है वो मेरे सहेली ने बताया। एक बार उसने कहा, हर समाज में हर व्यक्ति जन्म लेता है, उसका जय होता है। जायते अस्ति वर्धते विनश्यते तपस्यते। हर एक मनुष्य जाति को, प्राणी को यह नियम लागू है। हर एक आदमी जन्म लेगा, उसको समाज में कहीं जय मिलेगा, पराजय मिलेगा, क्रिटिसिज्म होगा, फिर वो क्रिटिसिज्म का विनिश्चय खत्म हो जाएगा। उसमें वो तपस्या करेगा, अपने अपने विचारों को समझेगा और उसको अच्छी तरह किस तरह अपने मन में ढालने की कल्पना करेगा, तब वो खुद का व्यक्तित्व बना पाएगा। एक बार जब मैंने कह दिया कि आज मैं नहीं जाना है, उस वक्त मेरी सहेली ने कहा, जो आदमी धूप को डरता है वो आदमी जिंदगी में कभी भी बड़ा नहीं बन पाएगा। अरे भाई, लड़ाई में जाने वाला व्यक्ति, सोल्जर,
यदि कहें कि पानी है, तूफान है, परेशानी है, अंधेरा है, तो वो लड़ाई करने के लायक नहीं होगा, वो वहीं मर जाएगा, उसकी विचार शक्ति वहीं भस्म हो जाएगी। यदि समाज में अपने को कुछ कर दिखाना है तो जो काम कठिन है उसको पहले परिपूर्ण करो। मेरे सहेली ने मुझे वो चेक उसी दिन लाने के लिए प्रवृत्त किया और मैं चेक लाने के लिए गया। उस दिन की किताबें मैं घर नहीं ले पाया क्योंकि जहां मैं गया वहां लेट हो गया था और लेट होने के वजह से वापस फिर लाइब्रेरी में आना मेरे लिए मुश्किल हो गया। मेरी किताबें उठा के मेरी सहेली अपने घर लेके गई। अब घर में किताबें लेके जाने के बाद यदि किसी ने देखा होगा और आरोप और प्रत्यारोप की बात होती हुई होगी तो मेरे सुनने वाले लोग समझे कि विपरीत कल्पना देने वाले घर के लोग भी इस बात को भी कभी समझने की चेष्टा करें। हमेशा किसी लड़की का मित्र लड़का होने के बाद वो एक ही विचार मन में लाओगे, समाज प्रबोधन नहीं होगा। अरे भाई स्वातंत्र मिलने के लिए भी स्वतंत्रता की वो नारे में गांधी जी ने नारा दिया और कहा जब तक हम लोग घर की स्त्री उनको बाहर नहीं निकालेंगे, उसको हम हमारे बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, तब तक हमको स्वतंत्र मिल नहीं पाएगा। और हमारी यदि ताकत 100% आज है तो हमारे घर की स्त्रियों को हमारे साथ नारा लगाने के लिए भेजिए, हमारी ताकत दुगुना हो जाएगी। महात्मा गांधी विचारों से बड़े बने। महात्मा गांधी के पास पैसा नहीं था। हमेशा हमने देखने वाले हर एक व्यक्ति ने उनको फोटो में भी सूट और बूट में बहुत कम देखा होगा। पैसा कमाना एक ही चित्र तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठेगा तो तुम्हें कुछ ऐसे काम करने होंगे जो समाज के दृष्टि से गलत है। और अरे भाई पैसा कमाने के बाद भी उम्र की ढलती 60 साल की उम्र में आप बीमार हो गए और डॉक्टर यदि आपका इलाज के लिए नहीं मिला तो पैसे का महत्व क्या है? संस्कृत भाषा में ही पीएचडी करने वाली इस सहेली ने मेरे दिमाग में सहेली के प्रति, सहेली के बदली में देवता का रूप धारण कर दिया। मैं एक नई चीज सीखने लग गया। एक बार तो उस जमाने में शोले पिक्चर आया था। तो सहेली ने दिन भर लाइब्रेरी में मैं न दिखने के बाद जैसे मुझे बाद में दूसरे दिन पूछा और कहने लगा कि बोरकर साहब आपके किताबें टेबल पे थे लेकिन आप दिन भर कल गायब थे। मैंने कहा मैडम कल मैं शोले पिक्चर देखने गया था। वो ऐसा हुआ कि परसों के रोज कॉलेज में उपस्थिति भारी कमी थी। The professor asked the student, where the boys has gone? One of the students stood and said, sir, they have gone all to see शोले मूवी। अकाउंट्स का पीरियड था। प्रोफेसर ने कहा आज उनको शोले देखने दीजिए, परीक्षा आएंगे उनके शोले भड़कना शुरू हो जाएगा। मेरे सहेली ने वो सुना
और फिर से उसने वेद बोलना शुरू कर दिया। वो वेद ही बोलती थी, उसके शब्दों में परिपूर्णता थी। वो वेद समाज में कुछ अलग होने की प्रेरणा दिखाती थी। मेरे सहेली ने मुझे प्रश्न पूछा, ओके, कल आपने शोले देखा, शोले में आपको कौन सी चीज बहुत अच्छी लगी? हम ऑर्डिनरी आदमी थे, शादी है, खाना खा लिया, उसके टेस्ट को कौन जानता है? पेट भर गया, हो गया। पिक्चर देखने गए, टिकट निकाली, पिक्चर देखा, घर में आगे भूल गए। अरे भाई, ये समाज तो मालूम ही नहीं था हमें कि पिक्चर देखने के बाद उसके ऊपर टिप्पणी लिखी जाती है। एक आदमी पिक्चर देखने, ड्रामा देखने, भावगीत सुनने प्रेक्षक करके जाता है। आधा घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, जो भी उस कार्यक्रम का समय है, उसमें एक रूप होके वो उस कार्यक्रम को एंजॉय करता है। ये हो गया एक प्रेक्षक। लेकिन जो प्रेक्षक मैंने देखा नहीं, वो प्रेक्षक किसी तो भी एक कुर्सी पे बैठ के नोट्स निकालता है, और नोट्स निकालने के बाद दूसरे दिन पेपर में उसकी टिप्पणी लिखता है। उस कार्यक्रम के बारे में जो अच्छाई है, जो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व है, उसको समाज तक पहुंचाता है। हम जाते और आते हैं, उसके ऊपर कुछ कर भी नहीं सकते। मेरे सहेली ने पूछा, शोले तो आपने देखा, कम से कम आपके शोले तो परीक्षा के समय में भड़कना नहीं चाहिए। लेकिन ओके, शोले पिक्चर में आपको क्या अच्छा लगा? मैंने कहा, मैडम, वो शोले में अपने दोस्त के लिए लड़की देखने जाता है। बोले, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। बोले, मासी पूछती है, बोले आपके दोस्त में क्या अच्छाई है? बोले, नहीं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी दारू पी लेता है। वो दारू पीता है? मासी ने पूछा, अरे तुम्हारा दोस्त दारू पीता है? ऐसी आदमी को मैं मेरी लड़की नहीं दूंगी, मैं सगी मासी हूं। बोलते, नहीं मासी जी, वो दारू इसलिए पीता है, कभी कभी जुआ खेल लेता है, जुआ खेलता है करके दारू पी लेता है। अरे तुम्हारा दोस्त जुआ भी खेलता है? मासी, वैसा वो जुआरी नहीं है, वो किसी से झगड़ा कर लेता है। अब मैंने कहा, मैडम, द वेरी गुड कंसेप्ट, look at the goodness of the people I learned from that picture, Sholay. Even though your bad character is there, how you can discard it and can show the other side of life, which will make people to think over it. मेरे सहेली ने वेद बोलना फिर से शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, सिप्पी के पिक्चर में ये जो प्लॉट लिया है मिस्टर बोरकर, ये महाभारत का एक कैरेक्टर है। महाभारत में यही कल्पना बड़े उच्च स्थान पे लोगों को प्रेरित करने के लिए ली थी। डायरेक्टर ने लोगों का मनोरंजन करने के लिए शोले में उसको जुआरी बना दिया है।
हमारा कहां महाभारत पे स्टडी थी, हमारा कहां रामायण हमने पढ़े, कहां हमको कभी संस्कृत तक नहीं पढ़े। मेरा संस्कृत की भाषा पढ़ने का एक ही क्लास था और वो थी मेरी सहेली, जिससे मैं आवश्यक उतनी संस्कृत श्लोक समझ पाया। सहेली ने कहा, कहां वो महाकाव्य और कहां हमारे स्फुटक कविता, कहां वो महाभारत और कहां ये शोले, कहां वो राजपुरुष और कहां ये दो बदमाश लड़के, कहां वो स्वाभिमान की जिंदगी जीने वाले राजपुरुष और ये कहां अपने आप को बेचने वाले हीरो। मिस्टर बोरकर, डू यू नो, माय सहेली टीचर continued, once upon a time this artist were not having identity. लोग उन्हें, अरे भाई अपने बच्ची को, अपने लड़के को नौटंकी में भेजना पालक के विचारों के अलग था, लेकिन डेफिनेटली हमारे समाज में कुछ कुछ ऐसे पिक्चर आए कि नेहरू जी को लगा, वहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर को लगा, अरे भाई हम पार्लियामेंट में बैठ के जो सेवा नहीं कर सकते वो फिल्म इंडस्ट्री वाले अपने पिक्चर के माध्यम से करते, अपने चलचित्र के माध्यम से करते हैं। और इसलिए कपूर को दो बार पार्लियामेंट का सीट पहले बार प्रदान करने में आया। कपूर खानदान से बने हुए जो पिक्चर थे वो समाज के प्रेरक उदाहरण थे। जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है में एक हाफ पैंट पहनने वाला, डफली बजाने वाला आदमी भी देश की सेवा कैसी कर सकता है, इसका ज्वलंत उदाहरण देने में आया है। अपने प्यार को बचाते हुए डाकुओं को शरणागति लाने में उसकी जो अहम भूमिका है, वो भूमिका हमारे देश में हमारे लीडर लोग नहीं कर पाए, जो आर के कपूर ने बताया। और उसके बाद कितने एक डाकू लोगों ने सरकार के सामने शरण, ये समाज की एक भावनात्मक स्पर्धा नहीं, सेवा है। हम पिक्चर में महाभारत के कैरेक्टर लेके लोगों को मनोरंजन करने के लिए उसके स्फुटक काव्य बताते हैं। महाकवि कालिदास, और कहां हमारे छोटे बड़े कविता बनाने वाले लोग। हमने कालिदास की वो कविता पढ़ना चाहिए जो उन्होंने स्वयं लिखी। हम उसके टुकड़े पढ़ते हैं और वो टुकड़े तक के हम सीमित रहते हैं। कालिदास ने पर्वतों पर, बरसात पर, वो जिस झोपड़े में रहता था, जो कुटी में रहता था, और वो कुटी के आजू बाजू में अनेक कुटियां थी, उसके ऊपर महाकाव्य लिखना शुरू कर दिया। अरे भाई, महाकाव्य लिखने की कम से कम प्रेरणा, कम से कम कल्पना हमारे दिल दिमाग में कहीं तो भी भरना चाहिए, कहीं तो उस विचार को देखना चाहिए।
नौटंकी? नौटंकी होने वाले जिस माध्यम को फिल्म इंडस्ट्री जिन्होंने बनाया है, वो लोग कोई महान थे, वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। आप शोले पिक्चर देखने के बाद साधारण व्यक्ति मत बनिए। आप शोले पिक्चर देखने के बाद एक महान व्यक्ति बनने की कोशिश कीजिए। और महान व्यक्ति वही बनता है जो समाज के दलित, गरीब, अल्पसंख्यक लोगों में जाके उनको नए विचार देता है। कहां वो रानी भांति जीवन बताने वाली मेरी सहेली, और कहां मेरा एक बस के 5 पैसे बचाने वाला अस्तित्व। वो कहां उसकी वो ललाट कल्पना, और कहां मेरा रोज 2 मात्र का भोजन करने की चेष्टा। कहां उसका सुंदर रूप, कहां मेरा पसीना से भरा हुआ वस्त्र, कहां मेरे चेहरे पे थकावट, कहां उसके ऊपर राज मुकुट। ऐसी सहेली के पैर पकड़ने के बिना मेरे पास दूसरा मार्ग नहीं बचा। जिसने मुझे महाभारत सिखाया, जिसने मुझे शोले में पिक्चर न देखते हुए भी उसकी टिप्पणी पेपर से बताई, और जो मैं मेरे आंखों से 3 घंटे के पिक्चर में नहीं देख पाया, वो उसने पेपर में आए हुए वो लेख के वो आलेख पर अपना विचार देना शुरू कर दिया। 3 घंटे मैंने खर्चा किए, लेकिन मैं टिप्पणी लिखने में कभी विचार ही नहीं किया ना कि मैं पढ़ूंगा और लोगों को मैं कुछ देने के मात्र बनूंगा। बस मुझे मिलता क्या है, मैं खींचना क्या चाहता हूं, मैं समाज को क्या देना चाहता हूं, यह कल्पना ने हमें कभी प्रविष्ट नहीं किया। वहां हमने घुसना चाहिए, वहां हमने एंट्री लेना चाहिए। लेकिन 1-1 घंटा किताबों को छोड़कर जब हम लोग बैठने लग गए और इस विचार की कल्पना एक में को देने लग गए, देखने वाले की नजर हमारी तरफ गलत तरफ होने लगी। बोले ये दोनों करते क्या है? समाज की प्रकोष्ठ यही है, लड़का और लड़की देखे कि लोगों के दिमाग में एक ही विचार आता है। वही बंधन में हमने समाज को बनाया है। आज उस देवी का रूप मुझे दिखने में आया। मैं अब बुढ़ा हो गया हूं। मेरा एक बेटा है। ऑफिस से थक के आने के बाद उस दिन मैंने मेरे बेटे को कहा, ऋतु मेरे कमर में कहीं दर्द दे रहा है। ऋतु, जो मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, मेरी ओर देख के उसने मेरे नजर से नजर मिलाई और उसने देखा कि मेरे चेहरे पे वो पीड़ा दिखाई नहीं देती है जो एक व्यक्ति को दर्द करती है। उसने कह दिया, पिताजी, जो आदमी अपना काम स्वयं करता है उसको भगवान कभी भी पीड़ा देता नहीं है। मुझे लगा मेरा बेटा मेरे और ध्यान नहीं दे रहा है। बीबी अपना काम कर रही है, दिन भर वो कॉलेज में पढ़ाने के बाद थक गई होगी, उसे खाना बनाना है, वो खाना में उसको समय लग जाएगा। इसलिए मैं
बेटे ने ऐसा ही बोलने के बाद एक 15 मिनट घूम के आना उचित समझा। 15 मिनट घूम के आने के बाद जहां मेरी नस लगी थी वो सैल हो गई। क्या हो, चलने से एक प्रकार का बॉडी को चलन मिल गया। जहां ब्लड थोड़ा सा ब्लॉक हो गया वो चलना फिरना मुंह होना शुरू हो गया। अरे भाई, जिन व्यक्ति को लोग स्त्री के काज देखने के बाद मित्र, मैत्रीन, सहेली, गर्लफ्रेंड बोलते हैं, उनकी नजर में कोई नई चीज लाए। अरे भाई, मेरी सहेली के शब्द आज के दिनों में मेरे घर में मेडिसिन करके इस्तेमाल होते हैं। और आप मेरे तरफ देखो, मेरे बेटे की तरफ देखो, मेरे बीबी की तरफ देखो, मेरे माँ की तरफ देखो, भाई की तरफ देखो। हमारे यहां कोई भी आदमी आपको अशक्त नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति को, मैत्री को लोग अछूत नजर से देखते हैं, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, यह कोई व्याख्या नहीं, यह समाज में बताने की चेष्टा जो बुजुर्ग करते हैं, वो बुजुर्गों तक मेरी आवाज जाए और वो समझे कि जो सहेली मेरी थी वो मेरे लिए सिर्फ सहेली नहीं, मेरे लिए भगवान मात्र स्त्री है। आपके आजू बाजू में भी इसी तरह से सहवास में कोई स्त्री पुरुष आते होंगे। आप उनसे नई कल्पना सीखने की चेष्टा तो कीजिए। देखिए, शब्द वेद कैसे बनते हैं, वेद बनने वाले शब्द इंसान को कैसे परिपूर्ण करते हैं, परिपक्व करते हैं। समाज में गलत ढंग से, गलत नजर से देखने वाले बुजुर्गों, कम से कम सहेली की उस मैत्री को गलत नाम देना गलती है आपकी। जब तक वो व्यक्ति आपके नजर में दूसरी और की तरह से दिखाई नहीं देता, तब तक उसको कोई नाम ना दो। मेरी सहेली, मेरे सहेली ने मुझे वेद सिखाया, मेरे सहेली ने मुझे व्यक्तित्व बनाने की चेष्टा की और व्यक्ति से बढ़कर इंसान बनाने की। उस स्त्री को नमस्कार करने के लिए, आज भी उसके पैरों तक झुकने के लिए मुझे कुछ शर्म नहीं। आप भी ऐसे एक आधी स्त्री को, सहेली को भगवान बनाने की चेष्टा तो कीजिए। धन्यवाद।